Akash, that we will have to discuss here and see कि कौन किस पे कर सकते हैं. Ravishankar, who's has one interesting comment. You are going to announce that captain whose performance is zero in Sena, that is South Africa, England, the overseas conditions, essentially New Zealand and Australia. And that one player, I'm guessing Ravi Shankar is pointing his fingers at a certain Shubman Gill. We will talk about Shubman Gill, but before, let's look at his performances in Test cricket in the Sena countries. So in Australia, he averages 35, played 6 matches. In England, he's played only 3 matches, 6 innings, very poor average of 14. South Africa, albeit playing 2 matches, he's not able to score a cumulative score of over 100, just 74 there. West Indies slightly better at 2 matches, and of course Australia being the best that he has. But he seems to be the natural option for a captaincy if we look at that route. A young leader आपको ग्रूम करना है उस स्क्वाड में, और कौन सा आपको यंग लीडर दिख रहा है? ये जो हमारा लाइकली स्क्वाड था, हमने कल ही क्रिकेट नेक्स्ट में ये स्टोरी की थी कि क्या हो सकता है लाइकली स्क्वाड, जिसमें हमने रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन और जसप्रीत बुमराह को एज वाइस कैप्टन अपॉइंट किया था, बट वो डेफिनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. बुमराह एज ए वाइस कैप्टन could be a possibility, but look at the names. You have in that young bracket, you have a Yashasvi Jaiswal, you have a Shubman Gill, and a Rishabh Pant. These are your, sure shot 3 guys who would be part of any test squad that India would be playing. I'm not talking about the 11 test squad. So are you looking at these 3? उसके अलावा कौन ही है आपके पास? Do you take a punt at maybe a KL Rahul as a stopgap captain, because 2 साल तक के लिए तो आपको कैप्टनसी दे सकते हैं, but do you want to burden somebody like KL Rahul with that opportunity? उसके बाद कोई और ऑप्शन आपको दिख ही नहीं रहा है. करुण नायर की भी हम बातें कर रहे हैं, whether he will get in a place in the squad finally or not, that's a big debate. Then you have Nitish Kumar Reddy, very raw, very young. Ravindra Jadeja is not young. Washington Sundar is still getting his, he needs to find a place in that 11. You're not going to go for a Mohammad Siraj. Shami is not young. Akashdeep, Prasidh Krishna. So options आपके पास ज़्यादा है नहीं. It's a Gill, it's a Pant, and maybe a KL Rahul. Jaiswal also would be an outside chance. But you are thinking the way selectors are going forward, Shubman Gill seems to be the person who is said to be named as the captain once the India's WTC's fresh cycle starts. Yeah, that's again will be a very surprising, क्योंकि आप देखो ना, आपने बताया कि है कौन ऑप्शन, शुभमन गिल. उसके आप कौन किस यंग चेहरे को आप मतलब जीरो इन कर सकते हो कि हाँ भैया ये यंगस्टर है, ये हमको एक लीडर की तरह दिखता है. और क्या आप श्रेयस अय्यर को उस लिस्ट में शामिल करना चाहोगे? ऋषभ पंत को आप उस लिस्ट में शामिल करना चाहोगे? केएल राहुल हमने देखा स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो हो सकता है, लेकिन फिर वहीं पे बात आ जाती है कि केएल राहुल के पास ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करने का एक्सपीरियंस भी है. और लेकिन बात फिर से वहीं आ जाती है ना कि जब आप यहाँ पे एक ऐसा सेटअप बना रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन व्हिच शुड रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पे आपको उसके ऑब्वियसली कंपोनेंट्स भी उस इंजन में नए फिट करने के लिए होंगे. लेकिन अब यहाँ पे आप हमारी टीम में से अगर कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को आपने पहले ही बोल दिया कि नो, ही इज नॉट इन द कंटेंशन ऑफ द न्यू कैप्टनसी, ठीक है, क्योंकि उनके साथ फिटनेस इश्यूज रहते हैं. उनका बैक पिछले कई सालों से उनको दिक्कत दे रहा है, जिसकी वजह से वो एक सीरीज में पूरे मैचेस भी खेलते हुए नहीं नजर आते हैं, और अगर किसी मैच में खेल लेते हैं तो अगले पूरे 1 साल 1.5 साल के लिए बाहर हो जाते हैं. ठीक है, अब ही इज जस्ट लाइक व्हाट हार्दिक पांड्या हैज बीन इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, राइट? तो अब यहाँ पे वी नीड टू डील विद हिम वेरी केयरफुली, बिकॉज हमें पता है जसप्रीत बुमराह अकेले अपने दम पे क्या कर लेते हैं. वो इस बार ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने दिखा दिया, 32 विकेट लेकर आए, हालांकि हम सीरीज हार गए, बट स्टिल वो वापस भी आए एक बैक निकल के साथ, जिसकी वजह से उनको चैंपियंस ट्रॉफी छोड़नी पड़ गई. और नाउ ही इज समहाउ मैनेजिंग टू मेक अ प्रॉपर कमबैक वाया आईपीएल. नाउ कमिंग बैक टू द ऑप्शंस, द कैप्टनसी ऑप्शंस दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, यू हैव डिसाइडेड दैट अब भैया हमें एक फ्रेश फेस चाहिए. 23 से 25 साल का हमारे पास मान के चलो एक केस सैंपल है कि हाँ इस एज ग्रुप का हमें कैप्टन चाहिए. उस एज ग्रुप में आप यहीं से जो ये हमारा जो प्लेयर्स के जो नाम हमने यहाँ पे रखे हैं उनमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है, ऋषभ पंत है, ध्रुव जुरेल है, और नीतीश कुमार रेड्डी है, वॉशिंगटन सुंदर है. बॉलर्स के भी नाम आप जोड़ लीजिए, आकाशदीप है, प्रसिद्ध कृष्णा है. अब ये 7-8 प्लेयर्स में से आप खुद सोचिए कि
कौन कैप्टनसी कर सकता है या कैप्टनसी के लायक कौन है, या फिर आप किस हिसाब से एनालाइज करेंगे कि भैया कैसा कैप्टन होना चाहिए, नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस प्लेड, तो उस हिसाब से तो फिर ये शुभमन गिल ही मतलब सबसे प्रबल दावेदार हुए, आपके फ्रंट रनर वही हो गए। अब यहाँ पे आता है कि मोस्ट नंबर ऑफ रन स्कोर्ड, तो उसमें भी जाहिर सी बात है जो जितने मैचेस खेलेगा उतने ज्यादा बाकियों से रन बना ही लेगा ऑब्वियसली, भले सेंचुरी हाफ सेंचुरी ना मारे, बट जिसको जितने चांसेस मिलेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि वो हर मैच में डक पे जाएगा, प्रैक्टिकली देखे तो ऑब्वियसली उसके नंबर ऑफ रन्स भी ज्यादा होंगे। और शुभमन गिल की कैप्टनसी की आप बात कर लो, ओवरसीज जब T20 सीरीज जब हम जिम्बाब्वे वगैरह देशों में खेलने के लिए जाते हैं, अभी लास्ट ईयर जब हम जिम्बाब्वे गए थे वहां पे उन्होंने T20 में कैप्टनसी की थी। उसके बाद फिर शुभमन गिल को अगर आप सोच रहे हैं कि टेस्ट में ग्रूम करना है, तो ऑब्वियसली फिर इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और ऑप्शन मिलेगा। लोग सरफराज खान, यहाँ पे अजहर पठान का एक हमारे पास कमेंट आया कि सरफराज खान को मौका मिलेगा क्या, सरफराज खान क्यों नहीं है। सरफराज खान ने मैचेस खेले कितने हैं, आज से 2 साल पहले तक हमें पता भी नहीं था कि सरफराज खान नाम का जो प्लेयर है मुंबई का, उसको इंडिया टीम में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। 2023 की शुरुआत तक तो हम यही सोच के चल रहे थे ना, हमें पता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद लास्ट ईयर वो टीम में आए, एक पिछले साल बैंगलोर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी, ऑस्ट्रेलिया में भी एक मैच खेलकर वो बैठ गए थे। तो ऐसे मतलब ये बहुत अनयूजुअल हो जाएगा ना कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सरफराज खान या फॉर दैट मैटर ध्रुव जुरेल या फिर यशस्वी जायसवाल ऐसे लोगों को कैप्टन बना दिया। 2-4 महीने पहले और जाते हैं, उस दौरान की बात करते हैं कि जब वो न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे थे एंड every day there was a new report about the captaincy, about the situation inside the dressing room, about the ruckus that was created, so called ruckus that was created inside the dressing room, the factions that were created inside the dressing room। वहां पे एक दैनिक जागरण की रिपोर्ट ने यह भी कहा था कि मे बी गौतम गंभीर कुड फेवर यशस्वी जायसवाल। उसका कोई आगे पीछे, उसका कोई और छोर, उसका सिरा कुछ नहीं पता चला था, बट वो एक वन लाइनर रिपोर्ट उस पेपर में थी, अगर लोग चाहे तो आज भी जाकर देख सकते हैं। इस केस में अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और क्या कहते हैं, जो रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चल रहा है कि सिलेक्टर्स क्या चाह रहे हैं, सिलेक्टर्स किसको चाह रहे हैं, तो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल तो नहीं, मैं कहूंगा शुभमन गिल ही मुझे नजर आ रहे हैं। बाकी इफ someone else get that captain's hat, it will be very very surprising। और अगर इंग्लैंड टूर के साथ किसी चीज ग्रूमिंग सेशन शुरू करना चाहता है बीसीसीआई या सिलेक्टर्स, वो अपने आप में एक बड़ा बोल्ड कॉल है। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा एक गैम्बल होगा कि भैया एक आउट ऑफ द बॉक्स यंग कैप्टन, कौन से सीरीज हमने चुनी उसको ग्रूम करने के लिए, 5 मैच सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, तो वो एक बहुत बड़ा गैम्बल हो जाएगा। और वहीं से ऐसा ना हो कि जो WTC 4th एडिशन का हम दोबारा एक और जो सपना देख रहे हैं कि somehow we'll end up making it to the finals of the 2025-27 WTC साइकिल, वहां से हमारा कैंपेन स्टार्टिंग से डिरेल ना हो जाए। तो now that selectors are looking for a fresh face, they should do it carefully, ताकि भैया ग्रूमिंग सेशन भी चलता रहे और उस ग्रूमिंग सेशन के चक्कर में जो आउटपुट है वो हैम्पर ना हो। एब्सोल्युटली, जो आउटपुट है वो हैम्पर ना हो। और जस्ट टू ऐड ऑन टू व्हाट अजहर पठान पूछ रहे हैं कि सरफराज खान क्यों नहीं है, वेल 6 मैचेस खेले हैं, सारे इंडिया में खेले हैं, बीजीटी में वो थे, स्क्वाड के साथ थे, लेकिन डिड नॉट कम क्लोज टू प्लेइंग एनी ऑफ द गेम्स देयर। और एक अनफेयर तरीके से पूरा डंप कर दिया गया था उन्हें कि यार उनको मौका ही नहीं मिला, इवन फेल करने का तो, फेल होने का तो मौका दीजिए, तो वो तो हो ही नहीं पाया। बट इट्स वेरी मच क्लियर कि जहाँ पे सरफराज खान ने जो रन्स बनाए हैं इंडियन कंडीशंस में बनाए हैं, हिज टेक्निक मे बी नॉट सूटेड फॉर ओवरसीज कंडीशंस लाइक इन ऑस्ट्रेलिया और मे बी इन इंग्लैंड। यही एक रीजन हो सकता है अगर जो सरफराज खान के अगेंस्ट गया हो और बिल्कुल जैसे नजरअंदाज ही उनको कर दिया है। बट आई डू एग्री विद अजहर कि मौका तो दीजिए आप उनको फेल करने का, फेल होने का, उसके पहले आप कैसे you can take a judgment call on a young player। But on that note, we'll stick to Shubman Gill itself। and Shubman Gill के बारे में स्पोर्ट्समैन ने एक और comment दिया है, Gill has a lot of technical deficiency when it comes to red ball। He first needs to be consistent with the bat before giving captaincy। My question to you sportsman is, if Rohit Sharma को आपने decide कर दिया है कि he is not going to be your captain, then who is the option। जैसे अभी आकाश ने बहुत ही तसल्ली से समझाया कि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इन
terms of that young cricketer ब्रैकेट जो आपको पूरे WTC साइकिल एटलीस्ट दिस आने वाले साइकिल में आपको टीम इंडिया को लीड करेंगे. डेफिशिएंसी हो सकती है, टेक्निकल डेफिशिएंसी, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीबॉडी हु इज एज परफेक्ट एज अ विराट कोहली और हु इज एज टैलेंटेड एज अ रोहित शर्मा. You will have to look beyond that, right? So if you are giving that role to a Shubman Gill, you are just hoping against all hopes that he comes good. You see the potential in him और उस हिसाब से आप दे रहे हैं. Now the question here, Akash, would be कि क्या the captaincy role would hamper Shubman Gill the batter, because you are looking at Shubman Gill as somebody who would be the linchpin of this Indian batting unit, at least in Test cricket. Well, let's say when Virat Kohli decides to step away in the next 2 years or 3 years or 1 year, maybe he is the one who has to hold this batting unit together. Do you think it will now be an added pressure on somebody like a Shubman Gill? And I will also bring in the point of, look at how the captaincy has been affecting or has improved his batting for the Gujarat Titans, even though it's a completely different set of formats. But leadership quality, maturity आप देख सकते हैं कि as a captain how well he is managing that with his batting form. On the other hand, बिल्कुल एक स्पेक्ट्रम पे अगर गिल है तो अगले स्पेक्ट्रम पे है somebody like a Rishabh who's also in contention. Look at the way his batting has completely gone out, leading Lucknow Super Giants. But then मैं ये बोलूंगा कि T20 फॉर्मेट टेस्ट में अलग है, but the leadership quality or leadership instincts pretty much are visible there in a Shubman Gill, isn't it, Akash? ऑब्वियसली देखिए, अब वही पॉइंट मैं कहने वाला था जो आपने लास्ट में मेंशन किया, और इनफैक्ट जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यहाँ पे सिलेक्टर्स ने भी कहा है कि दो फॉर्मेट के परफॉर्मेंसेस को आप कभी मिक्सअप नहीं कर सकते. ठीक है, अब रही बात की शुभमन गिल की, शुभमन गिल का ऑब्वियसली IPL 2025 में कमाल का कैप्टन से रिकॉर्ड अभी तक रहा है. इनफैक्ट ही इज वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर्स फॉर हिज टीम. और आप देखेंगे कि कब जो ऑरेंज कैप की लिस्ट है इस साल की, ठीक है, उसमें शुभमन गिल 6 नंबर पे है एंड इज द ओनली वन ऑफ द 2 कैप्टन्स टू हैव मेड इट टू द टॉप 10 लिस्ट ऑफ द ऑरेंज कैप IPL 2025. उसमें से शुभमन गिल है, अराउंड 465 रन कुछ उनके खाते में है. अब जहां तक रही कैप्टनसी की बात, पिछले साल तो कैप्टन वो बन ही गए थे ना गुजरात टाइटंस के, लेकिन पिछले साल इतना खराब उनका पूरे कैंपेन रहा. They ended 7th on the points table. Coming to 2025, ऐसा क्या हुआ कि भैया उनकी टीम जो है टॉप 4 में अभी तक रेस में है. कल उन्होंने मुंबई इंडियंस को हरा के और प्लेऑफ के एक मतलब they have stepped closer to the playoffs. तो ये चीज हम कह सकते हैं कि शुभमन गिल के फेवर में है कि yes, not if as a batter, then at least as a captain उन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है. And now these things will go into in his favor when it comes to leading the Indian cricket team, no matter which format it is. अब हो सकता है कि कैप्टनसी करने का तरीका T20 और टेस्ट में कंप्लीटली डिफरेंट हो, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्मेट्स अलग है, आपको वहां पे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा टेस्ट में. लेकिन अगर फॉर दैट मैटर आपको कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, ये दिखाने के लिए कि चलो हाँ भैया मेरे अंदर कैप्टनसी करने का पोटेंशियल है. And what if Shubman Gill goes on to lift the trophy this year? हम कई दिनों से यही बात कर रहे हैं ना कि भैया अगर शुभमन गिल टॉप 4 में, उनकी टीम अगर टॉप 4 में जगह बना लेती है, then he will be the youngest captain in that top 4 teams, among that top 4 teams to win the IPL. आप देखिए RCB है, वहां पे रजत पाटीदार उसके कैप्टन है, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर उसके कैप्टन है, और उस सारे यंग कैप्टन्स के रेस में एक शुभमन गिल है 25 ईयर ओल्ड, और इतने सालों से उनको IPL खेलने का तजुर्बा है. और आज अगर यहाँ पे वो IPL जीत जाते हैं तो आई थिंक दैट इक्वेशन माइट चेंज एज वेल. क्योंकि आप देखो पिछले साल जब श्रेयस अय्यर ने KKR को टाइटल जिताया था, उसके बाद से श्रेयस अय्यर अच्छा ही करते गए हैं. ठीक है, एंड नाउ वो भी इस कैप्टनसी रेस में कहीं ना कहीं आ सकते हैं. बट रिपोर्ट्स की अगर माने, शुभमन गिल का नाम लिया जा रहा है ऑब्वियसली. और अभी कुछ दिन पहले जब क्रिकेट नेक्स्ट ने राशिद खान के साथ एक इंटरेक्शन किया था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला था कि एक टीम को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैप्टन और कोच की कमराडरी. इस टाइम पे गुजरात टाइटंस की अगर बात करें, आशीष नेहरा और शुभमन गिल की कमराडरी बहुत ज्यादा है. और उसी में एड ऑन करते हुए राशिद खान ने ये कहा था कि ही कुड बी अ वेरी वेरी गुड कैप्टन फॉर टीम इंडिया इन फ्यूचर. अब हमें ये नहीं पता कि वो फ्यूचर कितना दूर है, या इंग्लैंड टूर से ही वो फ्यूचर स्टार्ट हो जाने वाला है. दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. बट यस, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग ऑफ
speaking of confidence of a captain, I will rate Shubman Gill higher than Rishabh Pant, क्योंकि ऋषभ पंत यार ठीक है, पोटेंशियल है, फ्लैम्बॉयंट प्लेयर है, उनके डिक्शनरी में ऐसे ऐसे शॉट्स हैं जो शायद कोई और प्लेयर खेलने जाएगा तो हिट विकेट आउट हो जाएगा, ठीक है, मुंह केबल या कमर के बस स्टंप्स पे गिर जाएगा। लेकिन वो बात अलग होती है। आप यहाँ पे हम बात करें कि कैप्टनसी का जो प्रेशर है वो कैसे झेलना। आपको कई ऐसे क्रंच मोमेंट्स आएंगे जहां पे आपको ऐसे डिसीजन लेने होंगे कि जिनको आप शायद बाद में जस्टिफाई करते फिरो या फिर वो क्लिक कर जाए। ऋषभ पंत के केस में आजकल यही हो रहा है कि वो हर एक डिसीजन को जस्टिफाई करते फिर रहे हैं, उनका एक भी दाव सही जगह लग नहीं रहा है। In comparison to what Shubman Gill has done, Rishabh Pant is far away, from catching up to that. तो यहाँ पे, और अभी शायद जो लास्ट हमारा साउथ अफ्रीका का टूर था वहां पे एक टेम्परामेंट का मैं डिसीजन, मतलब एग्जांपल वहां से भी आपको बता रहा हूँ कि आई थिंक इट वाज अ फर्स्ट टेस्ट में शुभमन गिल वाज सॉरी ऋषभ पंत वाज बैटिंग और शायद मार्को यानसन थे या कुगिजो रबाडा थे, दोनों बॉलर्स में से बॉलर ने उनको इंस्टिगेट किया था, वो गुस्से के चलते रैश शॉट खेलने के लिए गए और कॉट बिहाइंड होकर आउट हो गए थे। तो व्हेन यू आर बीइंग द कैप्टन ऑफ अ टेस्ट टीम, उस तरीके की गलतियां आप उनसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। लेटेस्ट एग्जांपल है बीजीटी का, जब स्टूपिड वाला वीडियो वायरल हुआ था सुनील गावस्कर का, हालांकि उस चीज पे अब एक एड भी बन गया है। नाउ द बोथ द क्रिकेटर्स, नाउ बोथ द पीपल फ्रॉम द क्रिकेट फ्रेटर्निटी हैव टेकन इन अ लाइटर नोट, बट वहां पे आपकी मेंटालिटी दिखती है। कैप्टनसी कोई हलवा तो है नहीं, ठीक है, और उसके बाद नाउ व्हेन द सिलेक्टर्स एंड द टीम मैनेजमेंट इज लुकिंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू बंच ऑफ पीपल जो कि आगे हमें 5 साल 10 साल तक इसको मतलब हमें रिटर्न देता रहे। ग्रूमिंग अभी से शुरू हो गई है। ऋषभ पंत की ग्रूमिंग तो पिछले 3-4 साल पहले से शुरू हो गई थी ना, बीच में तो 1 साल उनका इंजरी ब्रेक आ गया था। लेकिन अब देखिए उस 1 साल में चीजें बदली, टैलेंट पूल बढ़ता जा रहा है, ऋषभ पंत भले पीछे हो गए। तो अब समय के साथ साथ मुझे लगता है कि नाउ द सिलेक्टर्स आर आल्सो लुकिंग इन दैट वे कि भैया ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई अ पंट विद शुभमन गिल, नाउ सिंस दैट दे आर सेइंग दैट इट्स टाइम टू ग्रूम अ यंगर कैप्टन इन लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। तो आई थिंक दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू परस्यू थिंग्स।